ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यविष्टं स्थापितं जगद्भूतले स्वयंरूपपदामयं ददाति पदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगोत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरे प्रेम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरीतिसे नमः। निराचल निवसाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, जय वैष्णववृंद, जय आचार्यवृंद, जय श्री श्री गौर निताय, श्री श्री राधे गोविंद गौर सुंदर सीताराम। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद मातृवृंद, भगवान कृष्णंकर मुख्यतः दुई शक्ति चित शक्ति एवं अचित शक्ति। दुई शक्ति मान मध्य कंपेयर करी आमे श्रेष्ठत्व निर्णय करिबा। अचित शक्ति अर्थात ये पहाड़ पर्वत ये सब भगवान को अचित शक्ति उत्पन्न है। भगवान कृष्ण गीतार कहते अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। सब किछु मो ठारू उद्भूत है, सब किछु मो ठारू प्रवर्तित है। यही तत्व जो माने जानते से माने ही केवल अनन्य भाव भगवान को भजन करते। देखारे अचित शक्तिर परिणाम स्वरूप ए पहाड़ पर्वत ये सब
ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଯେମିତି ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଆଦି ଗୁଳ୍ମ ଆଦି ଏ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବୃକ୍ଷ ଲତା ଗୁଳ୍ମ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ପଶୁମାନେ ସରୀସୃପ ଜୀବମାନେ। ସରୀସୃପ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉନ୍ନତ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପଶୁମାନେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥାରେ ଆସି ଏପଟ ସେପଟ କରିବାନି, ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଧ୍ୟାନ କଥାରେ ରହିଲେ ତୁ କଥା କହିବ। ଏଠାରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଭୂତ ପ୍ରେତ। ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂତ ପ୍ରେତ। କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ନା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ରହିଛି। ତ କମ୍ପେୟାର ହିସାବରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଭୂତ ପ୍ରେତ। ତ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେଉଁମାନେ? ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ। ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? କିନ୍ନରମାନେ। କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ନା ଅସୁରମାନେ। ଅସୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଦେବତାମାନେ। ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର, କାହିଁକିନା ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ପ୍ରଜାପତିମାନେ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଶିବଜୀ। ଶିବଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଯେହେତୁ ଶିବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ନା ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତେ। ହରିବୋଲ। କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? କଥାଟା ଧ୍ୟାନ। ଏଠାରେ ସେଇ ଭଗବାନ ଋଷଭ ଦେବ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଋଷଭ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ। ଏଇନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ये जातिगत ब्राह्मण कथा एठारे कुहाଯାଉନି। ब्राह्मण माने जेमन परम ब्रह्मकर भक्त, परम ब्रह्म भगवान व्यतीत अन्य किसी जानती नाही, से माने होइछन्ति भगवानकर अति प्रिय। तेणु भगवान कहते ऋषभ देव मोर आराध्य होइछन् के ब्राह्मण भक्त। ध्यान सागर बुझा चेष्टा करंतु। जन्म मात्रे ही समस्ते ये शूद्र, कलो शूद्र संभव। कलिजुग मनुष्य को जन्म मात्रे ही समस्त शूद्र। शूद्र संस्कार भवे द्विज, अर्थात द्विज कहले द्वितीय थर जन्म हो। पिता माता जो जन्म या शौक्र जन्म। तेने शूद्र
ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିଜରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିଜ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ବେଦର ଦୁଇଟି ଶାଖା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରାଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପନିଷଦ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? କଥାର ଧ୍ୟାନ ଅଛି? ଏଠାରେ ବେଦ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ବେଦ। ସେଇ ବେଦର ଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟି ଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପନିଷଦ ଧାରା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରାଣ ଧାରା। ଉପନିଷଦ ଧାରାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନିଷଦ କ'ଣ? ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନିଷଦ କ'ଣ? ଗୀତ ଉପନିଷଦ। ତ ଗୀତ ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ ଗୀତା, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଗୀତ, ଗୀତରୁ ଗୀତା। এই গীতাକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଗୀତ ଉପନିଷଦ। ଏହାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଏ ଗୀତ। এই ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଜୀବନରେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ଗୀତ ଉପନିଷଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତାର ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ये शंकराचार्य यही कथा कहते एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीता। ये देवकी पुत्र किए? भगवान कृष्ण। कृष्ण को मुख निःसृत ये गीता, तेणु यह कहुच्छी गीत उपनिषद। तो गीतर यह कहुच्छी गीता, श्रीमद् भगवद गीता। जो शास्त्र अध्ययन करले आमर मति भगवान श्रीकृष्ण के चरण में निविष्ट। श्रीमद् हमार बुद्धिटा मतिटा केमिति हम? भगवान के चरण मति। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के मुख निःसृत गीता। गीत गीत कहले दिव्य उपदेश। ये दिव्य उपदेश प्राप्त न होगा पर्यंत आमे केबे हेले आमर अज्ञानता दोषरु मुक्त हेई पारिबा ना। जो पर्यंत आमे अज्ञानता दोषरे आच्छन्न थिबो से पर्यंत आमे ए बारंबार शरीर जड़ शरीर आमे ग्रहण करथि। तेना आत्मा सहित जेतेबेले ए भौतिक देह आ इंद्र मानक संयोजित होछि सेतेबेले सेही अवस्था को कोन कहा जाउछि? हाँ, या कौन कहा जाए? शुणुंट या जन्म कहा जाए। आमे समस्ते जीवात्मा, जीवात्मा सहित जिते बड़े भौतिक देह, स्थूल देह, इंद्र मान संयोजित होते से अवस्था को कहा जाए कौन? जन्म। कथा बुझिपारछन्ति? जेतेबेले ये भौतिक देह इंद्र मान आत्मा वियोग होछि, देहांतर होछि, से अवस्था को कौन कहा जाउछि? मृत्यु। हरे कृष्ण। कथा बुझिपारछन्ति? तेणु आमे समस्ते जन्म मृत्यु चक्र पड़े जाए। ये जन्ममृत्यु चक्रु उद्धार हेबाके हेले भगवान मुख निःसृत दिव्य उपदेश श्रीमद् भगवद गीता ये ज्ञान जिते प्राप्त हो अज्ञानता दूर हो ज्ञान कौन हम? प्रकृत ज्ञान आम से भगवान नित्य दास। यह हूँ आमर स्वरूप अवस्था। भगवान को दासत्व छाड़ी आमे मायार दासत्व करुचे। एति लागी आमे बारंबार
জড় দেহ নেই জন্মগ্রহণ করছে, বারংবার জড় দেহ ত্ୟାଗ କରିଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଅନାଦି କାଳରୁ। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ सर्विस मिलता ऑफिसर एक सुंदर जॉब मिलता। तेणु से व्यक्ति जो विवाह कले ये स्वामी स्त्री को केंद्र कर एक पुत्र संतान जात है। तो पुत्र बयस जिते बड़े 3 वर्ष एमती समय जमी गाँ ये रास्ता दे जाऊला एक माकड़ खेल देखते जो मैंने कौन कह जाए माकड़ माकड़ हाँ हाँ माकड़ खेल देख से फेरी कर जाऊले माकड़ खेल देख कि माकड़ खेल देख कि यही माँ कोले 3 वर्ष पिला जो करते से माकड़ देखी माकड़ खेल देखापी बहुत ये है माने आनंदित है मु माकड़ खेल देवी यही कथा कहवा लगे से पिला। तो बापा पाखे थिला संगे संगे माकड़ वाला को कहते अरे बापू तुम्हें दिन जाक केत पैसा रोजगार कर माकड़ खेल देखिए से कहते कौन मु दिन जाक 25-30 टंका रोजगार कर आज तुमको अन्न कड़े जावाक हेबना तुम एठारे रही मोर पुओर माकड़ खेला देखा मु तुमको 30 टंका देदेवी से चिंता कर मुझे कहीं बोल हाँ ये 30 टंका मिल जाऊँगी तो से रहीगला आ माकड़ खेला देख कमी हाथ में गोटे बाड़ी नहीं माकड़ वाला 2टा माकड़ से बाड़ी देखा माकड़ डेईकरी टेबल पुणी बाड़ी देखा टेबल खसी तड़क पड़े कथा शुण तेईपरी हाँ पिलाटा देखी बहुत आनंदित बहुत आनंदित है माकड़ जाम दे ऊपर को पुणी जाम दे तड़क खसी आसी पुणी ऊपर को एमती ये पिलाटा इतना आनंदित है 3 वर्ष पिला माकड़ खेला देख बहुत एवं दिन जाक खावा कथा भूली जाए माकड़ खेल से एत मजी जाए सन्ध्या हवा पूर्व माकड़ वाला के विदाय करदे 30 टंका दे या पुओ को स्नान ये सब करे खावा को दे माँ रात्रि कौन कर नहीं कलर धार कर शुई मध्य रात्रि निद भांगी जाए पुओटा निदा जो भांगी मु माकड़ खेला देखी मु माकड़ खेला देखी मु माकड़ खेला देखी ये कथा कंदी हो माँ कहे बाप तुम्हें रोज सका जो तुम माकड़ वाला आसो तुमको माकड़ ना मुझे बर्तमान माकड़ खेला देखी माकड़ खेला देखी माकड़ यही बहाना दे तो से माँ कौन कर पुअर बापा को कहते देखो तुम्हारा पुओ ये कौन बयाना धरी माकड़ खेला देख बर्तमान कौन करा तो बापा आसी सांत्वना दे बाप तुम्हें टिके रहो से आसंता काली जिते सी आसब तुमको पुणी माकड़ खेला देख ना मु माकड़ खेला देखी माकड़ खेला देखी एमती बयान देवा तो स्त्री से कहते तुम्हें माकड़ हो जा मु तुम्हारा बेकर गोटे दौड़ी लगेदेवी आ गोटे बाड़ी जो तो देखाबी तुम्हें से ठीक टेबुल ऊपर उठ पुणी टेबुल खोज तड़क आसो ये वो कांदुची से बंद हो जाए स्त्रीर कथा अनुसार ये माकड़ साजे के ऑफिसर कथा बुझी हाँ स्त्रीर कथा अनुसार माकड़ साजे स्त्री गोटे दौड़ी जमी माकड़ वाला
ମାଙ୍କଡ଼ ବେକରେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଦେଖେ ସେ ବାଡ଼ି ଦେଖେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିକିରି ଜାମ୍ ଦେ ଉପରକୁ ଯିବ ପୁଣି ଉପରୁ ଖୁସି ତଳକୁ ଆସିବ କିଏ ଠିକ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି କରୁଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ବାଡ଼ି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଇ ଅଫିସର ମାଙ୍କଡ଼ ସାଇଜ ତା ବେକରେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ସେଟା ଖେଚ ଦେଉଛି ଏ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ପୁଣି ତଳକୁ ଖୁସି ଆସେ ପୁଅ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇ ତାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ହଁ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ହଁ ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଏଣ୍ଟାର ଦୁନିଆଟା ଏ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀର ବଶୀଭୂତ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କଡ଼ ସାଜିବ କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କେହି ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାର ଏ ଦୋଷ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମେ ବଦ୍ଧ ଦୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ମାୟାର ଦାସ କରିବ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କଥା ହଁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କଡ଼ ସାଜି ରହିପାରିବେ ସାଜିବୁ କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ନା ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅନାଦି କାଳର ଦୋଷ ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ତେଣୁ ଏଟା ସଂସ୍କାର ପନ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି ଯମୁନ ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଭବେ ଦ୍ୱିଜ ବେଦ ପାଠ ଭବେ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଛି ଏ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଏସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କୁହାଯାଉନି ଏସବୁ ଶୂଦ୍ର ମଦ ପିଇବା ଏସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କୁହାଯାଉନି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟାସ ବଶିଷ୍ଠ ଆଦି ଏସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଋଷଭ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ ଆଉ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଭଗବାନ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦେବତା କିଏ ଭଗବାନ ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ସମସ୍ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମତି ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ରଣଭୂମି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୀତ ଉପନିଷଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦର ଚରମ ଜ୍ଞାନ ଏ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ସେ ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁ ଏ ଗୀତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ୟାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ କାହିଁକି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମୋହ ଜାତ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ମୋହ ଦୂର ହେଇଗଲା ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଏକ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପେ ମୋର ଧର୍ମଟା କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ତେବେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ପଦ ପାଇଛୁ যে পর্যন্ত আমি ভগবানকে নির্দেশ পালন ন করছে সে পর্যন্ত আমি মনুষ্য পদবাচ্য নুহে মনুষ্য পরি শরীর আমি ধারণ করছে কিন্তু আচার ব্যবহার সব পশু মানকে বলে কিন্তু মনুষ্য হেলে বি সে পুচ্ছবিহীন দ্বিগড়িয়া পশু এ শাস্ত্রে এই কথা কয়া যাচ্ছে আমি মনুষ্য পরি দেহ প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু মনুষ্যচিত কর্তব্য কর্ম আমি সম্পাদন করলাম মনুষ্য দেহ দ্বারা কেবলই ধর্ম আচরণ করে পারিব না কৌশি শরীর দ্বারা ধর্ম আচরণ করে পারিব নাহি আর ধর্ম কেবল ভগবানদের দ্বারা প্রবর্তিত অন্য কেই ধর্ম প্রবর্তন করে পারিব নাহি তেমনি সেই ভগবান এ বৌদ্ধ জীবনক দিব্য জ্ঞান দেওয়া পাই এ বেদ পুরাণ আদি সব দেলে
से वेद पुराणर ज्ञान वेदर ज्ञान दुईटी धारार प्रवाहित होती गोटे हूँ उपनिषद धारा हिसाब सर्वोत्तम ग्रंथ हूँ श्रीमद भगवद गीता या दिव्य उपदेश कहुच्छे ठीक से पुराण धारा ये वेदर ज्ञान चरम परिणाम स्वरूप हूँ भागवत महापुराण कथा बुझिपारे वेदर ज्ञान दुईटी धारार आसूची गोटे हूँ पुराण धारा सर्वोत्तम परिणाम स्वरूप ये श्रीमद भगवद गीता या गीत उपनिषद कह उपनिषद कह उपनिषद धार और गोटे हूँ पुराण हिसाब से श्रीमद भागवत महापुराण कहीं भगवान को मुख निश्चित उपदेश आ भागवत में भगवान दिव्य लीला कहानी अद्भुत चरित कथा ये सब वर्णित है तेन भागवत श्रवण मात्रे ही हमार समस्त पाप विनाश हो भागवत एमती गोटे ग्रंथ जो ग्रंथ श्रवण मात्रे ही हमारे समस्त प्रकार मंगल उदय हो गोपी गीत कथा कह श्रवणम मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना श्रवण मात्रे समस्त प्रकार अमंगल दूर हो समस्त प्रकार मंगल उदय हो अरे भागवत कथा जो व्यक्त कर को श्रवण कराती से होती ये जगत सब बड़ दाता श्रेष्ठ दाता कई भई पार ना कहीं ना जीवात्मा अनादि काल भगवान को भूली जाए ये भौतिक जगत आसी से गोटे गोटे जड़देह ग्रहण कर जड़देह त्याग कर जनमती चक्र पड़ जाए अनंत दुख दुर्दशा भोग करे दुख दुर्दशा उद्धार होगापाई एकमात्र उपयुक्त शरीर हूँ जो मनुष्य शरीर प्राप्त हो मनुष्य शरीर द्वारा कौन करने ये भगवान भक्त ब्राह्मण ये पूर्ण परम पुरुष भगवान को जानते भगवान को अति प्रिय व्यक्ति को गुरु रूपे बरण कर निर्देश अनुसार यहीपरी भगवान को भक्ति करने तेबे से भक्ति कर भगवान के पास को बर्तमान कलिजुग चली तो कलिजुग यहीपरी ये को सद्गुरु आम केमी प्राप्त हो पार तो शास्त्र पद्म पुराण से कथा कहुई जे कलिजुगे केवल 4टी बोनाफाइड संप्रदाय अच्छे या व्यतीत आउ जिते प्रकार संप्रदाय ये सब अपसंप्रदाय से सब संप्रदाय भुक्त जो समस्त गुरु से कई प्रकृतर भगवान के भक्त नहंती शुद्ध भक्त नहंती सेहीपरि गुरु ग्रहण करी मंत्र प्राप्त हो मंत्र साधन करी केवल मंत्र परम जो प्रयोजनीय वस्तु प्राप्त वस्तु प्रेम आम प्राप्त हो पारिबा ना प्रेम प्राप्त न हवा पर्यंत आम जन्मृत्यु चक्र उद्धार हो भगवान के पाखक फेरी जा पारिबा ना तेरे पद्म पुराण कह संप्रदाय विहीन जे मंत्रस्ते निष्फला मता अतो कलौ भविष्यन्ति चत्तारस्ते संप्रदायिन श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा ख्याति पावना चत्तारस्ते कलौ भव्या हृत्कले पुरुषोत्तमा ये पद्म पुराणे यहीपरि भविष्यवाणी कराई कलिजुग कलिजुगर संप्रदाय संबंध अर्थात ये 4टी सत् संप्रदाय गोटे संप्रदाय मूलभूत आचार्य लक्ष्मी देवी तेनी या श्री संप्रदाय कहा श्री माने लक्ष्मी देवी
लक्ष्मी देवी डायरेक्ट ये भगवत तत्व ज्ञान भगवान को ठारू प्राप्त होते ये गुरु शिष्य परंपरा चली आस ये ज्ञान कलिजुग जे आचार्य से होती रामानुज आचार्य। तो रामानुज अन्य कहीं नुहति रामंकर भगवान रामंकर भाई लक्षण ये कलिजुग आचार्य रूपे आसते से होती रामानुज आचार्य रामंकर अनुज। तो से लक्षण ये कलिजुग आचार्य रूपे आसती से होती श्री संप्रदाय भुक्त ये एक सत् आचार्य सद गुरु कथा बुझे श्री संप्रदाय। ठीक से ब्रह्म संप्रदाय मूलभूत आचार्य होती गुरु होती ब्रह्माजी। ब्रह्माजी डायरेक्ट भगवत तत्व ज्ञान भगवान को ठार प्राप्त होता अर्थात साक्षात भगवान ठारू ये चतुश्लोकी भागवतम से प्राप्त होता से चतुश्लोकी भागवतम ब्रह्मा को ठार प्राप्त होता पुत्र एवं शिष्य नारद मुनि। नारद मुनि को ठार प्राप्त होते किए व्यासदेव ये दिव्य ज्ञान। नारद मुनि के निर्देश अनुसार व्यासदेव ये चतुश्लोकी भागवत को विस्तारित भाव वर्णना कर 18,000 श्लोक संबंधित ये भागवतम दे भागवतर 12टी स्कंद रही 335 अध्याय रही और श्लोक संख्या केते 18,000 श्लोक। तो 18,000 श्लोक संबंधित 335 अध्याय युक्त ये 12 स्कंद युक्त श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान करो परिवर्तित रूप। भगवान निजे धाम को चली जाइछन्ति भगवत धाम गोलक वृंदावन तेने आम मानकर पाई से निजको भागवत रूप परिणत करी एटारे छाड़ी जाइछन्ति। तो भागवत होची श्रीमद् भागवत होची कृष्णकर परिवर्तित रूप। तेने जो पर्यंत हमें भागवत को आश्रय न करछे से पर्यंत हमें समस्त पापर मुक्त हो पारिबा। तेणु भागवत अंतिम श्लोक से कथा कह जाए कौन कह जाए आम जो दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त होइछे ये दुर्लभ मनुष्य देह द्वारा दुई प्रकार कार्य प्रतिदिन संपादन करने के हम। तेणु भागवत अंतिम श्लोक कह जाए नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणाम दुख शमनम स्तंग नमामि हरि परम। ये दुई प्रकार कार्य करने निर्देश दिया जाए। प्रथम हूँ कलिजुग लोक मान केवल भगवान का नाम व्यतीत कौन धर्म भगवान देले नहीं। कलिजुग लोक मान केवल नाम रूपी धर्म एकमात्र धर्म या श्रेष्ठ धर्म आ किछि नहीं। ये श्लोक कह जाए नाम संकीर्तन जस जस करे से भगवान कर ये नाम जदि समस्ते एका साथी रे एपरी उच्चस्वर कीर्तन करिवे तार जन्म जन्मार्जित जिते सब पाप कर्म फल भोगवार थिला से तुरु से मुक्त है केते सहज पंथा देला देखो एटा कहछन्ति कोन नाम संकीर्तन जस से भगवान का नाम यदि समस्त एका साथी रे कीर्तन करिवे समस्त पाप प्रनाशन समस्त प्रकार पाप नाश हो केते सहज पंथा दे। पुनी द्वितीय कथाटा कोन प्रणाम दुख शमनम स्तंग नमामि हरि परम। से भगवान को यदि आमे भक्ति भर प्रणाम करिबा तारे हमर समस्त दुख चली कितने सुंदर सिद्धांत एठार दिया जाए भागवत अंतिम श्लोक आमे जेहेतु
ये दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त है ये दुर्लभ मनुष्य देह द्वारा आमे जदि पार्टी भगवान नाम उच्चारण करवा ताहले आमर जन्म जन्मार्जित जिते सब पाप कर्म दुर्भोग भोगवार थिला सेतुर आमे मुक्त है समस्त पाप मुक्त है पुनी से भगवान को जदि आम भक्ति भाव प्रणाम करवा तार आम समस्त दुख चली तो पाप नष्ट हो नाम उच्चारण द्वारा भगवान को प्रणाम द्वारा हमारे समस्त दुख जदि चली तार क्यों स्थिति आम अवस्थान करवा केवल आनंद आनंद आनंदमय स्थिति आम अवस्थान कर कहीं दुख भोग करे आम भगवान के नाम को आश्रय करना भगवान को भक्ति भाव प्रणाम करना ये लगे आम सर्वदाई दुख ही भोग करे ये दुख कहार द्वारा ना दुर्गा देवी हाथ ये दुर्गर मालिक ये दुर्ग कहले ये भौतिक जगत को दुर्ग कहा दुर्ग कहीं कहा ये दुर्गा देवी को दुर्ग माने हमें सब बंदीशाला पड़ जाए हाँ तेनी दुर्गा देवी आमको त्रितापे तापित कर दुर्गा देवी को दश भुजा मान मध्य गोटे हाथ में त्रिशूल रही त्रिशूल तीनोटी फला रही हाँ त्रिताप द्वारा हम तापित कर आदि भौतिक आदि दैविक आदि आत्मिक त्रिताप एथिरे केही मुक्त हो पारिबा नाही भूत आदि भौतिक अन्य जीव मान द्वारा जो समस्त क्लेश या को आदि भौतिक आदि दैविक देवता मान द्वारा एक जमी कोरोना भाइरस आसी सब देवता मान द्वारा कोरोना भाइरस विपाक केते लोक प्राण हर हाँ कि ना हाँ हठात एक्सीडेंट केते एक्सीडेंट होची ट्रेन सहित एक्सीडेंट होची बस सहित एक्सीडेंट होची ट्रक कार सहित एक्सीडेंट होची केते एक्सीडेंट मृत्युवरण करछि इस दैवी दुर्गा कहीं ना आम भगवान को भूली जाए आम मनुष्य देह प्राप्त है केवल निज इंद्र तृप्ति लिप्त है पशु मान तेनी ये दैवी दुर्विपाक आम समस्त पड़ी जाए दुख दुर्दशा आमको भोग करने ये दुख दुर्दशा से मुक्त हो पार ये तो दुई प्रकार दुख कथा कहला गोटे आदि भौतिक आदि दैविक आदि आत्मिक देहगत समस्त केते प्रकार रोग हाँ प्रत्येक केते प्रकार रोग द्वारा समस्त पीड़ित होती पुनी अति निकट आत्मीय निज स्त्री मरी जाए निजर पुओ मरी जाए झील मरी जाए मन में केते दुख केते ताप या कह आदि आत्मिक देव मनोगत जो सब दुख ये समस्त को भोगवा के लगी हमारे दुष्कर्म परिणाम दुष्कर्म कौन आम भगवान को भूली जाए भगवान आम मान दुख त्राण देवा ये सब दिव्य उपदेश देले से उपदेश अनुसार आम कौन करवा भगवान को भक्त है यदि भगवान को भक्ति करवा भगवान के कृपारू आम समस्ते दुख दुर्दशा मुक्त हो पार भगवान ये उपदेश दे कौन मनर सब मो कथा चिंता कर मोर भक्त हुओ मते पूजा कर मते नमस्कार कर भगवान ये डायरेक्ट कहीदे ये गीता रे अर्जुन को लक्ष्य कर समग्र जगतवासी मान ये दिव्य उपदेश देले कौन देले मन मना भव मद भक्त मद जाजी मान नमस्कार ये चारिटी काम करने भगवान निर्देश देले मन सब मो कथा अर्थात भगवान के कथा मन सब भगवान को चिंता करने भगवान को छाड़ी दुनिया कथा चिंता करें दुख दुर्दशा भगवान ही निर्देश दे भगवान निर्देश पालन करवा वास्तव धर्म
या श्रेष्ठ धर्म आउ कि नहीं। तेने भगवान कहते जगत कथा चली बर्तमान मु जगन्नाथ मो कथा चिंता कर तुम दुख सब चल। भगवान कौन कहते से कहते तुम्हें जदि मो चरण शरणापन्न हम ताले मोर कृपारू तुम्हें पूर्वार्जित समस्त पाप प्रतिक्रिया मुक्त से कौन कहले गीतारे अहम तंग सर्व पापेभ्यो मुख्यिष्यामि मा शुच। तुम्हें चिंता करना तुम समस्त पापेर मु मुक्ति देवी केते बड़े सर्वधर्म परित्यज्य माम एकं शरणं समस्त प्रकार धर्म परिहार करी यदि तुम्हें मो चरण शरणापन्न हो ताहले मु तुमार समस्त पापेर प्रतिक्रिया मुक्ति देवी। उन्हें कहीं आमको पापेर प्रतिक्रिया मुक्ति दे पारिबा नहीं। तेने से भगवान जगन्नाथ कृष्ण गोटे ना हूँ मुकुंद। मुकुंद ना शुणी तेने मुक्तिदाता से केवल मुक्ति दे पार कहीं कौन से देव देवी आमको मुक्ति दे पारिबा नहीं। तेने से गीता पाठर उद्देश्य होची से श्रीकृष्ण के चरण शरणापन्न हवा ये उपदेश। गीता रहस्यटा देखो गीता रहस्य दिव्य ज्ञान उद्देश्य कौन ये दिव्य ज्ञान उद्देश्य होची आमे जेते दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त होइचे ये मनुष्य देह द्वारा भगवान श्रीकृष्ण के चरण शरणापन्न ताहले हमर पूर्वार्जित समस्त पापेर प्रतिक्रिया भगवान हमन मुक्ति देवे। एथि लगी ये दिव्य उपदेश समन्वित श्रीमद् भगवद गीता आज हमारे इस्कंदर प्रतिष्ठाता आचार्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा ये प्रतिटी श्लोकर शब्दानुवाद उन्हीं अनुवाद तार ऊपर तात्पर्य देइछे भावार्थ देइछे बुझिया तापर कोन करबा के हो आमे जदि परि बुझि जदि न परिबा ताले से भक्तमान के संग करिबा के भक्तमान के मुखरु ये भागवत कथा श्रवण करिबा ताले आमे यथार्थ सिद्धांत हृदयंगम करि पारे यथार्थ सिद्धांत आमे हृदयंगम करि परिबा सेतबे हमर समस्त अज्ञानता दूर है। जो अज्ञानता जोगु आमे अनादि कालरु ये जन्ममृत्यु चक्र पड़ी केवल दुख दुर्दशा भोग करिछि से दुख दुर्दशा रे आमे समस्त मुक्त है पारिबा। तेने दुईटी धारा हिसाब रे ये वेदर ज्ञान आसीछि गोटे होछि उपनिषद धारा जार परिणाम स्वरूप ये होछि चरम परिणाम स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता आ पुराण धारा हिसाब रे चरम परिणाम स्वरूप श्रीमद् भागवतम महापुराण श्रीमद् भागवत को कौन कहा जाउछि महापुराण। अष्टादश पुराण मानक मध्यरु महापुराण होइछि केवल श्रीमद् भागवतम। ये त्रिगुणर अंतर्भुक्त नुहे याको कहा जाउछि शुद्ध सत्य और 17टी पुराण 6टी पुराण तम गुणरे आउ 6टी पुराण रज गुणरे आउ 5टी पुराण सत्य गुणरे श्रीमद् भागवत होछि शुद्ध सत्य त्रिगुणर उद्धार तो याको महापुराण। तेने ये भागवत धर्म ग्रहण करियाई होछि हमर मनुष्य जीवन एकमात्र उद्देश्य कथा बुझि पाले। आमे जो मनुष्य देह प्राप्त होइछे मनुष्य देहर एकमात्र उद्देश्य कौन भागवत धर्म ग्रहण करिया। भागवत धर्मटा कौन आमे अनादि कालरु भगवान को भूली जाए ये भौतिक जगत को आसी मायार दासत्व करिछे किंतु माया दासत्व मुक्त है पुनी भगवान के सहित संबंध स्थापन करी भगवान के दासत्व करबा होची भागवत धर्म कथा बुझि पाले। भागवत धर्म कौन
आमे जो भगवान का नित्य अंश आमे से भगवान को छाड़ी भौतिक जगत आसी जन्मति चक्र पड़ जाए आम एठार दुख दुर्दशा भोग कर लगी जड़ देह ग्रहण करने तेनी जड़ देह मुक्त होगापाई कौन करवा के हम ना भगवान के एक शुद्ध भक्त गुरु रूपे बरण करवा के हम निर्देश अनुसार यहीपरी आम जब भगवान के भक्ति युक्त हो भगवान के भक्ति युक्त हो आम भौतिक दशा मुक्त हो भगवान को पाखक फेरी जाइए भौतिक देह रहा से भगवान के ऊपर चिन्मय देह हो चिन्मय देह प्राप्ति पाए जो प्रयास जो साधन या मनुष्य जीवन एकमात्र तपस्या ऋषभ देव उपदेश दौरान पुत्र मान लोक को समग्र जगतवासी मान आम मनुष्य देह प्राप्त से उच्च स्थिति प्राप्त होगापाई अनंत सुख लाभ पाई हमको कौन करवा हम तपस्या आचरण करवा तप दिव्य पुत्र का जेन सत्यम शुद्धे ये ऋषभ देव एक कथा कहले भगवान ऋषभ देव तपस्या द्वारा आम आम स्थिति को उन्नत कर स्थिति को उन्नत कर बिना तपस्या के उच्च स्थिति प्राप्त हो पार उच्च स्थिति मान कौन भगवान का धाम प्राप्त भगवान के धाम को गले आ कौन से दुख रहा कहीं कहार मृत्यु हेब ना कई बार्धक्य दशा प्राप्त हेब ना कई कौन प्रकार रोग द्वारा आक्रांत हेब ना भगवान धाम नित्य किशोर अवस्था अवस्थान कर केवल आनंद आनंद तो सही भगवत धाम प्राप्त होगापाई भगवान के एक शुद्ध भक्त जहाँ भी ऋषभ एक कथा कहते ब्राह्मण जे कि परम ब्रह्म को जानती से एक उन्नत भगवत भक्त ब्राह्मण को गुरु को बरण कर निर्देश अनुसार यदि आम यहीपरी भगवान कर सेवार पुनि युक्त हो से युक्त हवा नाम हूँ भागवत धर्म कथा बुझिपारे भागवत धर्म कौन हाँ भागवत धर्म कौन बुझिपारे भगवान सहित विचित हवा जो भौतिक जगत आसी दुख भोग कर एक सद गुरु के निर्देश अनुसार पुणी से भगवान कर सहित संबंध स्थापन कर भगवान की सेवा युक्त हवा ही कहुच्छी भागवत धर्म कथा बुझिपारे तो भगवान के सेवा युक्त न हो पर्यंत आमर दुखेर अवसान हेब नहीं केबे आम भौतिक दशा मुक्त हो पारिबा नहीं केबे आम जन्म चक्र उद्धार हो पारिबा नहीं तेनी ये पद्म पुराण रे ये संप्रदाय संबंध ये कथा कहे कथा मुझे कौन ये चारिटी सत् संप्रदाय कलिजुगे चारिटी सत् संप्रदाय होची गोटे लक्ष्मी माता लक्ष्मी आसी और गोटे ब्रह्माजी तो ब्रह्माजी विषय मुझे आलोचना कर व्यासदेव को ये दिव्य ज्ञान प्राप्त है कि कलिजुगे एक आचार्य मध्वाचार्य डायरेक्ट ये भगवत तत्व ज्ञान व्यासदेव प्राप्त है मध्वाचार्य ना सुनते ये मध्वाचार्य ये ज्ञान चली आसी गुरु परंपरा द्वारा एपरी हमारे संप्रदाय माधवेंद्र पुरी ये ज्ञान प्राप्त है कि ईश्वरपुरी ये ज्ञान प्राप्त है कि साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी सब ज्ञान आसुची किंतु से बर्तमान भक्त लीला कर मनुष्य रूप आमर कर्तव्य एक गुरु को ग्रहण करने के गुरु चरण आश्रय करने के से निज भगवान होपरी ईश्वरपुरी को गुरु रूपे से ग्रहण कर ये ज्ञान चली महाप्रभु ये ज्ञान रूप गोस्वामी ये ज्ञान प्राप्त है रघुनाथ दास गोस्वामी ये ज्ञान प्राप्त है के कृष्णदास कविराज गोस्वामी
कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये गान यही गुरु परंपरा चले आसी नरोत्तम दास ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर ये गान प्राप्त रखे यहीपरि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये गान प्राप्त रखे बलदेव विद्याभूषण यहीपरि बलदेव विद्याभूषण ये गान प्राप्त रखे वैष्णव सार्वभौम सिद्ध जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज ये गान प्राप्त रखे भक्ति विनोद ठाकुर ये गान प्राप्त रखे ना गौर किशोर दास बाबाजी महाराज ये गान प्राप्त रखे ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे प्रभुपाद के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये गान भागवत धर्म के प्राप्त है ना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा भागवत धर्म आज इस्कन तरफर समग्र दुनिया रे प्रचार प्रसार चले कथा बुझिपारे ये भागवत धर्म आगस राजा माने राजकार्य परिहार करी से वन को चली जाते कहीं बनरे सब मुनि ऋषि सत ये रोचंती से मुखरे भागवत कथा श्रवण करिया किंतु आज हमारे इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद कृपारू आज आमको क्या आओ गृह त्याग कर वन को जीवा के हवा नहीं वन को उठाई आनी प्रभुपाद शहर नगर ग्राम सब आड़े स्थापन कर तमने भगवान का मंदिर सब स्थापन कर तो भगवान का मंदिर हूँ वृंदावन वृंदावन कहीं कह जाऊँ जेठे भगवान कृष्ण विराजमान भगवान कृष्ण कौटे रहते हाँ कौटे वृंदावन हाँ इस्कन जित मंदिर समग्र दुनिया रे ये सब हूँ कौन वृंदावन तो प्रभुपाद मन को उठे आनी शहर ग्राम सब आड़े स्थापन करते क्या विरोध न करी समस्त पशु मान जो अच्छे से वन को जीवा के हम ना क्यों क्यों वन को जीवा के हम वृंदावन माने जो गाँव रे हमारे इस्कन मंदिर अच्छे राधा कृष्ण मंदिर अच्छे से वृंदावन का आशीर्वाद आज कौन करेंगे भक्तमान के मुखरे भागवत कथा श्रवण ये भागवत कथा बुझे हाँ हमें भागवत धर्म केते अनायास प्राप्त हो जाए प्रभुपाद कृपा केवल घर मंदिर को आसी भक्त मान संग कर भक्त मान के मुखर ये भागवत कथा श्रवण ताहले हमारे जीवन परिपूर्णता प्राप्त हो और जीवन आम किसी अवशिष्ट रहेगा नहीं भागवत धर्म जी आश्रय कर भागवत धर्म आश्रय कर चिरतन जन्मित चक्र उद्धार है भगवान के पास को तो प्रभुपाद कृपा अनायास ये भागवत धर्म ग्रहण कर बर्तमान आमार ऊपर निर्भर करते सुंदर व्यवस्था कर तथापि लोक रुचि नाई मंदिर को आशीर्वाद साधु मान को संग करी साधु मान को मुझे भागवत का श्रवण करी ये भी रुचि नाई तो हमें केते पतित जीव आलस राजा माने चक्रवर्ती राजा शशागर पृथ्वी सम्राट से मैंने राज ऐश्वर्य सब मलब्बत परित्याग करी वन को चले जाते जार नाम अनुसार ये ऋषभदेव का पुत्र ये भारतवर्ष पूर्व ना था कौन अजनाभ वर्ष भारतवर्ष पूर्व ना कौन थी अजनाभ वर्ष अजनाभ वर्ष भारतवर्ष कहीं अज किए अज हूँ ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव कहे अज नाभ नाभि पिता ना हूँ नाभि इतना पुण्यवान राजा थे ना अनुसार पिता पुत्र ना अनुसार भारतवर्ष पूर्व ना था कौन अजनाभ वर्ष कथा बुझे अजनाभ वर्ष मैंने अज एवं नाभि
दुई जन का ना अनुसार ये भारतवर्ष पूरा ना थिला अजनाथ वर्ष आ से ऋषभदेव पुत्र भरत एते बड़ भक्त थिले एते महान थिले समग्र सशर पृथ्वी एकछत्र सम्राट थिले किंतु भगवान के प्रति एते आसक्ति बढ़ी जाइतिला युवा अवस्था रे ये राजकाज सब परिहार करी से जाइतिला पुल आश्रम हे तांकर नाम अनुसार ये भारतवर्ष नाम वचन सुधा चली कथा बुझी पाले का नाम अनुसार ऋषभदेव पुत्र भरत भरत तीन जन अच्छा रामचंद्र भाई भरत ऋषभदेव पुत्र भरत आगे भरत के जड़ भरत ये सब जड़ कहानी बुद्धि किसी ना ये हूँ शकुंतला पुत्र भरत किसी बुझुना शकुंतला दुष्मंत शकुंतला पुत्र होती भरत से भी साधारण लोक नी भगवान अंश अवतार सत्तावीस अवतार ये तीन जन भरत रामचंद्र के भाई भरत ये तो विष्णु तत्व साक्षात भगवान रामचंद्र के भाई भरत और शकुंतला पुत्र भरत और ये ऋषभदेव पुत्र भरत ऋषभदेव पुत्र भरत नाम अनुसार ये अजना वर्ष बर्तमान ये भारतवर्ष नाम देखते केते बड़ भक्त थे ये भागवत धर्म ग्रहण करने राज ऐश्वर्य सब मनोपत से भागवत धर्म आज प्रभुपाद आम पाखे आम उपस्थित कर कबल अच्छु एत मायाग्रस्त अवस्था अच्छु तथापि आम इे आसक्ति जाता साधु संग अनाशे ये भागवत धर्म आम तथा ये विषय हमारा कहीं समस्त कलिर कबल समस्त माया कबल तेणु ये जन्म जन्मांतर धरी आम दुख भोग जो पर्यटन मनुष्य शरीर अच्छी से पर्यंत केवल भागवत धर्म अनुसरण कर मनुष्य देह जिते बड़े विचित हो पशु देह को चली भागवत धर्म कौन प्रश्न ही आसो ये देह भी सबुदिन नुहे आम जो मनुष्य देह प्राप्त केते दिन पाए हाँ क्षणिक पाए केते बड़े देह प्राणटा चली जाए कौन ग्यारंटी अच्छी कि तेणु ये प्रभुपाद केते कृपामय समग्र दुनिया रे भागवत धर्म घर घर बंचे एमती आम इस्कन तरफ ये प्रचार चली प्रति घर को जाए ये गीता भागवतम उठे यदि प्रति घर घर यदि गीता भागवतम रही तथापि बहुत सेटा जम आसीपारे जम दूत मान आसीपारे जहाँ घर भागवत रही गीता भागवत रही से जम दूत भी आसीपारे से भागवत यदि से घर प्रतिदिन पाठ यदि हम और जमराज को प्रश्न ही ना आम से भागवत धर्म आश्रय करी जनु चक्र उद्धार भगवान के पाख फेरी कहीं आम जन्म चक्र पड़ जाए गीतार से कथा कह जात ही ध्रुव मृत ध्रुव जन्म मृत जे जन्मग्रहण कर मर जे मर से आ गए जल देह नहीं जन्मग्रहण कर या आमको करवा केवल कौन आम जो मनुष्य देह मिली ये मनुष्य देह द्वारा साधु संग करवा साधु संगे कौन आलोचना है भगवान कथा कृष्ण कथा आलोचना है कृष्ण कथा कान बाट दे श्रवण करवा कौन हम आमर समस्त कर्मश नाश हो समस्त पापेर आम मुक्त
ভগবত চেতনশীল হয়ে যাবে, কৃষ্ণ চেতনশীল হয়ে যাবে। কৃষ্ণ চেতনশীল হয়ে গেলে সে জন্মমৃত্যু চক্রের দ্বারাই ভগবানকে পাবে। সমগ্র দুনিয়ার আগে ইস্কন তরফে এই ভাগবত ধর্ম প্রচার ও প্রসার চালিয়ে আজ প্রভুপাদের ব্যক্তিত্ব। আমি যেহেতু এই মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছে, আমার কর্তব্য হচ্ছে বর্তমান এক উপযুক্ত সব গুরুকে চরণাশ্রয় କରି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରି ଏହିପରି ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆମେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହାକୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, ভগবান শত স্মরণ হয়েছে। কথা বুঝতে পারলে? ইয়ার ভাগবত ধর্ম কাজ, ইয়ার ভক্তিময় জীবন। তাহলে নবদা ভক্তির প্রথম তিনটি অঙ্গ এ হচ্ছে শ্রবণ, কীর্তন, বিষ্ণু স্মরণ। ইয়াকে ভাগবত ধর্ম কাজ। কথা বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, তো প্রভুপাদ কেতে কৃপা করলে এই সুযোগ আমার মানুষ সব করে দেবে। শ্রবণ পাই, কীর্তন পাই, ভগবান স্মরণ করিয়া। কিন্তু বর্তমানে আমি এই গুরুଙ୍କର মাধ্যমে এইপରି ভগবত ভক্তির যুক্ত হওয়ার আছে। আমি যদি এইপরি এক সৎগুরুଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ভগবত ভক্তির যুক্ত ହେଇଯିବୁ, তাহলে এইপରି ভাগবত ধর্ম আচরণ କରି ଆମେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇ। এই ভাগবত ধর্ম ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି କେବଳ କୁକୁର ଶୁକର ଭଳି, ଇଏ କେବଳ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୋହିତ ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। କୋଉଥିଲାଗି? ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରି ଆମର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ। ଉନ୍ନତ ମାନେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ইয়াকে তপস্যাময় জীবন যাপন করা হয়েছে, ইয়াকে দিব্য তপস্যা করা হয়েছে। হিরণ্যকশিপু তপস্যা করে দিলে 36,000 বর্ষ ধরে। দেহ ওই পোক চড়িয়ে সব রক্ত মাংস খাই যাইছিল না না? হ্যাঁ, তার তপস্যা ফলটা কম। সে তপস্যা କରିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଅମରତ୍ୱ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିନାଶ କରିବା। ଇଏ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ঋষভদেব ଦେଉছে ତପ ଦିବ୍ୟ ପୁତ୍ର ଗଜାନନ ସପ୍ତମ ଶୁଦ୍ଧ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ। ଏହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା। ହଁ, ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରି ଆସି ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସି ସମସ୍ତେ ସମାଧି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। କେତେ ସେ ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ମାନେ କାମ ଖାଡ଼ା କରି ଶ୍ରବଣ କରିବା କି ହବ? କାମ ଖାଡ଼ା କରି ଶ୍ରବଣ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମର ହୃଦୟରେ ଯେତେ ସବୁ କଳମସ ରହିଛି, ଭୋଗ ବାସନା ଅଛି, ସବୁ ନାଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ভগবান কপিল মুনি একথা করেছেন, শতাং প্রসঙ্গা মম বীর্য সংবিত ভবন্তি হিত কর্ম রসায়ন কথা। ভগবানଙ୍କ କଥାରେ ଏତେ ଦିବ୍ୟ ରସ ରହିଛି, ଯଦି କାନ ବାଟ ଦେଇ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ତୃପ୍ତିଦାୟକ ହେଇଯିବ, ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତ କଳମସ ନାଶ ହେଇଯିବ।
शुद्ध शुद्ध हृदय से भगवान को स्मरण भगवान को स्मरण हो गला माने समस्त भौतिक बंधन छिन्न आशु अपवर्ग वर्तमान श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति ये भगवान कपिल मुनि एक कथा कहि आशु मान अति शीघ्र हम मुक्तिर द्वार खुली केते बेले भगवान के कथा यदि हमें एकाग्र मंदिर श्रवण करिबा से भगवान के नाम यदि हमें कीर्तन करिबा इच्छा स्वाभाविक ताहले कोन हलो हम मुक्तिर द्वार खुली हमें से पवर्ग मुक्त हम अपवर्ग अर्थ मुक्तिर द्वार खुली से श्रद्धा भक्ति भक्ति अर्थ हम प्रेम भक्ति प्राप्त समस्त मनुष्य टीका नाम पढ़तु बचने से समय धरी कथा श्रवण कर ले या श्रवण कराई वर्तमान से भगवान का दिव्य नाम समस्त ताली दे कीर्तन कर हरे कृष्णा 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 सचिनंदन गौर हरि की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय जगत बृहस्पति उपाधि की जय विदित पावन श्री गुरुदेव की जय शबद भक्त वृंद की निताई गौर ये गीता को मैंने पकड़ नहीं ये गीता नहीं पढ़ेगा प्रभुपाद ने फिर गीता ये पढ़ंतु और ये जी भगवान कृष्ण कर वृंदावन लीला मथुरा लीला द्वारिका लीला ये जी भगवान
परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण ओडिया रही पुणी हमारे तीन टा बही रही अंग्रेजी ओडिया अनुवाद कर बही मथुरा मीट्स वृंदावन जहाँ ओडिया ना दिया ब्रज माधुरी यह अंग्रेजी प्रशांत ओडिया ना दिया प्रेम